Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss review questions. As you know that we have completed second chapter named as atomic structures. So we are going to attempt review questions of that very chapter. I hope you will do it along with me. First of all, we will discuss about MCQs, and I'll be giving a little review of every question so you may guess it before having the answer. So the first question is, according to Bohr atomic model, A option is each orbit has fixed energy, so each orbit is called sub-energy level. Option B is the energy of electron is inversely proportional to its distance from the nucleus. Light is absorbed when an electron jumps a lower energy orbit. The farther the electron from the nucleus, the more energy it has. So, can you guess which is the correct answer? Okay, I am giving a little review about every option. First option is कि आपके पास जो एक एटम होता है उसके आसपास जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है. So they are called sub-energy level. No, this is absolutely wrong. They are not called sub-energy level, although they are called energy levels. Main energy levels होते हैं वो, ठीक है? Second option is energy of the electron is inversely proportional to its distance from the nucleus. This is also wrong. कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जा रही होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के फ्रॉम द न्यूक्लियस. थर्ड ऑप्शन इज लाइट इज एब्जॉर्ब एंड इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट. बच्चे जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी. इसीलिए वो अपने से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा. कभी भी एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में नहीं जाएगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? That is option D. The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. ये क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी. So the correct option is option D. Moving to the next question. Chlorine has two isotopes, both of which have same mass number. Before going to options, let me revise you what are isotopes. क्या होते हैं isotopes? बच्चे isotopes के बारे में आपने क्या पढ़ा था? Isotopes are the elements are the atoms of an element containing same proton number या same atomic number but having different mass numbers. So what are isotopes? Isotopes have same atomic number but different mass number. Now we will move to the options. Option B is same number of neutrons. Option C is different number of protons. Same number of electrons. तो क्या चीज इनके अंदर ये ऑप्शन देख लें कौन सा करेक्ट होगा. दो आइसोटोप्स हैं तो उनका मैस नंबर तो सेम नहीं होगा. यही इसकी डेफिनेशन है कि मैस नंबर डिफरेंट होगा. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल ये भी बात गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन्स ही डिफरेंट होते हैं जिनकी वजह से मैस नंबर डिफरेंट होता है. थर्ड ऑप्शन इज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बच्चे प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट नहीं होते. एज यू नो दैट there are same number of protons in both the isotopes. That is why they have same atomic number. atomic number relate कर रहा होता है प्रोटॉन नंबर से. तो हमने क्या कैसे डिफाइन किया इसको? उनका atomic number सेम होता है लेकिन mass number डिफरेंट होता है. ओके, so option D is same number of electrons. This is absolutely right. क्यों? क्योंकि
हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने आइसोटोप्स को इसी तरीके से डिफाइन किया था ना कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो मींस कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। Third MCQ is number of neutrons in 27 mole and 13 R. बेटा सिंपली आपने कैसे करना है कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक m जो है ये किसी भी फर्जी किस्म के एलिमेंट को शो कर रहा है, और 27 इसका मैस नंबर है और 13 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। सो आप क्या करेंगे, 27 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 14। ओके, फोर्थ MCQ is which isotope is commonly used to irradiate cancer cell? This is obvious, आप लोगों ने uses of isotopes याद किए। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। There are 4 options and cobalt 60 is true as this is used to irradiate cancer cells. आप लोगों ने पढ़ा था ना, but is before going to irradiations I'll be giving a little review of cancer. क्या होता है कैंसर? This is uncontrolled cell division of cells. ठीक है, एक अनकंट्रोल्ड किस्म की सेल डिवीजन हो रही होती है और उसमें जो है बहुत सारे अबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं और वो एक ट्यूमर बना लेते हैं। अब हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट 2 किस्म से होती है, एक रेडियोथेरेपी से होती है और एक कीमोथेरेपी से होती है। रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशंस डालते हैं उस ट्यूमर के ऊपर और उन रेडिएशंस के थ्रू हम उस ट्यूमर के सेल्स को श्रिंक करते हैं और उन सेल्स को किल करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में हमारे पास कोबाल्ट 60 यूज होता है, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So MCQ number 5 is M shell has subshells. पहला शेल कौन सा था, K, दूसरा शेल कौन सा था, L, एंड तीसरा शेल कौन सा था, M। अब M जो है इसका नंबर क्या है, 3 है, तो इसके अंदर सब शेल्स भी 3 होंगे। सो कौन कौन से 3 होंगे, 3S, 3P, 3D। ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है ना, ये इसके M शेल के नंबर को शो कर रहा होता है एंड S, P और D सब शेल्स को शो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक आपने कल पढ़ा था, उसमें इस चीज को डिटेल से डिस्कस किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A subshell that can accommodate 6 electrons is, keep in mind that we are talking about subshell, we are not talking about shell। SPDF आपको मैं बता देती हूँ कि हर एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D can accommodate 10 electrons and F can accommodate 14 electrons. So which option is correct? That is obviously P. Option C is correct. I am repeating, S shell can accommodate 2 electrons, D shell can accommodate 10 electrons, P shell can accommodate 6 electrons, and F shell can have 14 electrons. This has been discussed in the previous topic of electronic configuration. MCQ 11 is sodium has the electronic configuration. 11 is showing that atomic number of sodium is 11. So हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हुई हुई है। गौर से देखिए, सबसे पहला देखें 1s2, 2s2, 3s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो बात गलत हो गई, हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने हैं। ऑप्शन बी देखें 1s2, 2s2, 2p7, 2, 4 एंड 7 11 हो रहे हैं, बट
इलेक्ट्रॉन्स तो 11 इन्होंने पूरे कर दिया। अब इसमें क्या मिस्टेक है, पी के अंदर आपने अभी पढ़ा है, पिछले एमसीक्यू में पढ़ा है, पी कैन अकोमोडेट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इज रिटन 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की तरफ आ जाते हैं, 1s2, 2s2, 2p5, 3s2। आपने ऑफ वर्क प्रिंसिपल पढ़ा था कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पूरे होंगे फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। पी के अंदर 5 इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। पी कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तभी इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन डी देख लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, दिस इज करेक्ट वन। 2, 4, 6, 10 एंड 1, 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए आपके। So this is how we can accommodate 11 electrons in electronic configuration. Option D is correct. Moving to the 8th MCQ. Rutherford used dash particles in his experiment. That is understood. He used, बताएं जी कौन सा particle? He used helium plus 2 particles. Option C is correct. Question 9 is, which of the following statement is not correct about isotopes? They have same atomic number. ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन गलत है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। सो दिस इज करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। The next option is they have same physical properties. This is inappropriate क्योंकि physical properties physics से related होती हैं, mass से related होते हैं, ठीक है। अब different isotopes हैं, उनके masses different होंगे, तो जो properties masses से related होंगी, जो physical properties masses से related होंगी, वो anisotopes में different होंगी। So option D is correct. Moving to the next question or the last MCQ is, which isotopes is used in nuclear reactors? जिस बच्चे ने uses of isotopes को याद कर लिया है उसके लिए तो isotopes से related किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I hope आप सब साथ साथ इसको कर रहे हैं। Uranium 234, uranium 238, uranium 235 and all of these. हाँ जी बेटा, यूरेनियम के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234, 238, 235, और इनमें से कौन सा एमसीक्यू आपका यूज होता है? यूरेनियम 235 रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। बाकी जो है जो 234 होता है ये तो बहुत ही कम टाइम के लिए रह सकता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, और U238 जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सिर्फ कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सकता है? यूरेनियम 235। ये 235, 238, 234 ये इनके मैसेज को शो कर रहे हैं, ठीक है। आइसोटोप्स को लिखने का ये तरीका होता है कि हम आइसोटोप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके आगे उनके मैसेज लिख लेते हैं। एज यू नो दैट आइसोटोप्स डिफर ओनली इन एटॉमिक मैसेज। ओके बच्चे, एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपने साथ में अटेम्प्ट किए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स, बहुत ही आसान है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्लाइड्स को गौर से देखा और साथ साथ में उसको अटेम्प्ट किया तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेल्स के सबसे पहले जब भी डिफरेंशिएट करते होते हैं तो क्या आप पहले डेफिनेशंस लिखते हैं दोनों की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन शेल। The electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular path called shell or orbits. क्या होते हैं शेल्स? इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट के पाथ होते हैं ना, जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। सब शेल क्या होते हैं? जब ये शेल जो है आपके, इनको सब डिवाइड किया जाता है तो फिर क्या बन जाते हैं? सब शेल्स बन जाते हैं। Each shell has a fixed energy. So each shell is also called an energy level. Each shell is described by n value. क्या आपके पास शेल की एनर्जी फिक्स होती है इसलिए उसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, और इसको शो करने के लिए n एक फिगर यूज किया जाता है, एंड n इज इक्वल टू 1, 2, 3।
जो सब शेल्स होते हैं, एन वैल्यू ऑफ अ शेल इज प्लेस बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखते हैं तो समझ आ जाएगी। व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट इज k शेल, व्हेन n इज इक्वल टू 2 इट इज l शेल, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 3 इट इज m शेल। अब आ जाते हैं सब शेल पे। फॉर इंस्टेंट n इज इक्वल टू 1 फॉर k शेल, सो इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 सब शेल। आप देखेंगे ना बच्चे, n जो नंबर होता है ना किसी भी शेल का, उतने ही उसके अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब k शेल का नंबर 1 है तो इसके अंदर 1 ही सब शेल होगा। l शेल का n 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल्स होंगे। ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट है एल के बाद आएगा एम, उसका नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे। 4 है तो उसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, 4s 4p 4d एंड 4f। और ये जो सब शेल से पहले 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है, ये किसको शो करता है? शेल को शो करता है, और इसके आगे spdf सब शेल्स को शो करता है। आई एम होल्डिंग दिस स्लाइड फॉर अ व्हाइल ताकि आप लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Okay students, moving to the next question. Why an atom is electrically neutral? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, कि एक एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज क्यों नहीं होता, जबकि हम जानते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है या क्यों चार्ज नहीं होता। तो इसका आंसर है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब 3 प्रोटॉन्स हैं मींस उसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर 3 नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्योंकि इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए नेट चार्ज किसी भी एटम का 0 होता है, और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, as you can read, proton has positive charge and usually expressed as +1. The electron has negative charge and expressed as -1. A neutral atom has the same number of protons and electrons. Therefore, the net charge in an atom is equal to 0. Q 0? Because positive and negative charge cancels each other's effect. This makes an atom electrically neutral. I hope आपने इसको नोट कर लिया होगा. Now we will move to third question. That is, how many subshells are there in N shell? This question is also related to electronic configuration slides. सबसे पहले आपने याद रखना है सीक्वेंस, पहले K शेल होता है, फिर L, फिर M और फिर एंड पे N शेल होता है। N का जो नंबर होता है N इज इक्वल टू 4, सो इट कंटेन्स 4 सब शेल्स। ठीक है, जितना नंबर होगा ना, n अगर 2 होता तो 2 सब शेल्स होते, n अगर 1 होता तो 1 सब शेल होता, n अगर 3 होता तो 3 सब शेल होते, बट यहाँ पे n जो है 4 है, सो इट वुड कंटेन 4 सब शेल्स। एंड कौन कौन से सब शेल्स होंगे? S, P, D एंड F। एंड ये हर सब शेल से पहले जो 4 लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है शेल को, एंड S, P, D, F इंडिकेट कर रहे हैं सब शेल्स। This is how we write or we measure in electronic configuration. I hope you all have noted it down. So we'll move to the next question. Give notation for subshells of M shell. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पिछला सॉल्व किया क्वेश्चन कि M जो है कब आता है, K, L and M. M तीसरे नंबर पे आता है, तो इसके लिए N क्या होगा? 3 होगा. So it will have 3 subshells and इसकी नोटेशन कैसे होती है? 3S, 3P एंड 3D। ये 3 जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? ये M शेल के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। एंड S, P, D एंड F ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? M शेल के अंदर मौजूद
सब शेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। इसको जल्दी से नोट कर लें। So the next question is list the subshells of M shell in order of increasing energy. तो सबसे कम एनर्जी S की होती है, फिर P की, फिर D की एंड फिर F की। तो M के अभी आपने नोटेशन पढ़ी है पीछे 3S, 3P एंड 3D. This is how we can notify that how energy is increased in the subshells. 3S की सबसे कम है, फिर 3P की है एंड फिर 3D की है। Question number 6 is, can you identify an atom without knowing number of neutrons in it? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर भी देख लें कि मॉडर्न जो हमारा पीरियोडिक सिस्टम है ना, उसमें हम एटम्स को किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं और किसकी बेस पे अरेंज करते हैं? एटॉमिक नंबर की बेस पे। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, so in the modern periodic table modern periodic system, atoms are identified by their atomic number, which refers to number of protons, and it has nothing to do with the number of neutrons. ठीक है? However, we can find out number of neutrons by subtracting atomic number from atomic mass. अब आपको उन्होंने बता दिया कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना भी पता होना तो फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास एटम कौन सा है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मॉडर्न सिस्टम किसकी बात करता है? एटॉमिक नंबर की बात करता है। एंड एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर ये है और ये जो है फलां एलिमेंट होगा। हाँ, ये बात है कि अगर हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फार्मूला गिवन है। एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। Moving to the next question. The electronic configuration listed are incorrect. Explain what mistakes have been made in the each and right correct. आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ गिवन है, ठीक है, तो इनके अंदर मिस्टेक्स हैं। अब हमने क्या करना है, उनमें से मिस्टेक्स भी फाइंड आउट करनी है और उनको सेट करके लिखना है। तो आंसर आप देख लें कि अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिल्स द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कम एनर्जी वाले शेल्स को फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब हम एक्स की बात करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है? 1s2, 2s2, 2p4, 3p2, 2p4 मींस कि आपका ये p ही कंप्लीट नहीं है तो आपका इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं सकता। तो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 एंड 2p6। ओके, y की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है? 1s2, 2s1, 2p1। बेटा 2s1 है मींस के 2s के अंदर अभी एबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक और अकोमोडेट हो सकता है। एज यू नो s कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम s को पहले कंप्लीट करेंगे फिर p की बात करेंगे। सो द करेक्ट वन इज 1s2, 2s2। अब आ जाते हैं z पे, z पे आ जाते हैं। z is equal to 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. As you know, p can accommodate 6 electrons. So why it is given with 5 electrons? यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। इसकी करेक्ट वन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6। मैं स्लाइड को होल्ड कर रही हूँ ताकि आप आंसर को नोट कर लें। Next question is which orbital in each of the following pair is lower in energy? आपको पता है कि पहली बात तो शेल की कर लें। जो शेल पहले आएगा उसकी एनर्जी कम होगी। फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एस पी डी एफ की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। एस की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी की एनर्जी होती है, फिर डी की, फिर एफ की। सो हमने हर एक पेयर का बताना है। 2s और 2p में से 2s की एनर्जी कम होगी एंड 2p की एनर्जी
ज्यादा होगी। सेकंड पेयर की जब हम बात कर लेते हैं 3p एंड 2p, ये 2 और 3 बेटा किसको शो कर रहा है? शेल की बात कर रहा है ये, ठीक है। सेकंड शेल के p की बात कर रहा है एंड फिर थर्ड शेल के p की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है सेकंड शेल की एनर्जी कम होगी और थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग एज 2p हैज एनर्जी लेस देन 3p। 3s एंड 4s में 3s पहले थर्ड शेल है एंड 4s फोर्थ शेल है, तो इसकी एनर्जी में थर्ड शेल की एनर्जी कम होगी एंड फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। इसको आप नोट कर लें। Moving to the next question, draw Bohr's model for the following atoms indicating the location for electrons, protons and neutrons. हमने बोहर के मॉडल बनाने हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए? पोटेशियम के लिए बनाना है आपने, तो आपके सामने आ गया पोटेशियम के लिए। एटॉमिक नंबर 19 है ना बेटा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की बात करते हैं तो तब आपको एटॉमिक मास से इसका लेना देना नहीं होता, ठीक है। आपने किसकी बात करनी है? एटॉमिक नंबर की। मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो हियर वी विल accommodate 19 electrons. First shell can accommodate 2 electrons, second shell can accommodate 8 electrons, and third can also accommodate 8 electrons, and fourth will contain 1 electron. ठीक है। आप लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 8 हैं एंड फिर 1 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 है। मींस हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है? 14 को। न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन्स होंगे एंड 14 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर 14 न्यूट्रॉन है? एज यू नो, mass number is sum of atomic number, sum of proton number and sum of neutrons, ठीक है। तो अगर आपके पास mass number 28 है, इसमें से atomic number माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। So here we can see that there are 14 protons and 14 neutrons. अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 14 प्रोटॉन है तो आपने इलेक्ट्रॉन भी 14 अकोमोडेट करने हैं। फर्स्ट शेल कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड वुड कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको ड्रॉ कर लें। सो द नेक्स्ट वन इज आर्गॉन का आपने ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, सो इट वुड कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट शेल वुड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वुड आल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों ने आज एक्सरसाइज कर ली है। हाफ एक्सरसाइज हो गई, हाफ इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आप लोगों ने इसको अपनी नीट नोटबुक पे नोट करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।